नमस्कार भाई दोस्तों। आज से संसद सत्र शुरू हो रहा है। एक अमेरिका की संसद है जिसके अंदर खुल के खालसा राज के बारे में बोला गया। यूएनओ के अंदर बकायदा नाम लेके उठाया गया खालसा राज का मुद्दा। आपको सुनाएंगे, पूरा सुन लेना ध्यान से, आपके अगर समझ में आ जाए तो। एक ये बंदर सेना वाले का कच्चा किसने पढ़ दिया भाई, वो रो रहा है। मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने हमारी नेकर फाड़ दी। किसने फाड़ दी भाई? ये क्यों रो रहा है बेचारा, इसका समझ में नहीं आ रहा। अपनी संसद में कोई भी नहीं बोल सकता जितना कि अमेरिका के अंदर बोला गया, खुल के, बिल्कुल खुल कर बोला गया। एक तो पहले तो ये रो क्यों रहा है इसके बारे में बताओ। ये बंदर क्यों रो रहा है इसका समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इसका सुनियो ध्यान से, थोड़ा सा आपको समझ में ਆ ਸਾਡੇ ਖਾਕੀ ਕੱਛੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਮ ਕੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕੱਛਾ ਪਾੜਿਆ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ये शेर का कच्चा तू जाके देख लेता एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी में, तेरे को वहां पे पता लग जाता वहां पे क्या क्या फटता है। फिर तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी जाने की। एक भाई इसको जरा पूरा ध्यान से सुनना, जो एक बोलिया गया, बिल्कुल डिटेल में बोलिया गया खालसा राज के बारे में यूएनओ के अंदर, बकायदा नाम लेके। पहले तो सुनो इसको। Now I give the floor to Sikh Assembly of America. ਮੈਡਮ ਸ਼ੇਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੋਗਣ ਤੇ ਅਰਸੋਗਣ ਤੇ ਜਲ ਜੋਗਣ ਤੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਬਚਾਵੈ, ਸਤਰੈ ਨੇਕ ਚਲਾਵਤ ਕਾਵ, ਤਉਤਨ ਏਕ ਨ ਲਾਗਣ ਭਾਵੈ। I thank you for the opportunity to speak at the 18th United Nations Forum. The Sikh Assembly submits this statement and would like to raise three concerns that are affecting the Sikh community in the struggle for peace building in Punjab, as well as the struggle for transitional justice and representation. The US, UK, and Canadian authorities have exposed an international nexus of organized criminals working in coordination with Indian intelligence agencies to carry out murders of Sikh representatives working under the United Nations Charter of Self-Determination, including the successful assassinations of Khalistan leaders Hardeep Singh Nijjar, Avtar Singh Khanda, and an attempt on Khalistan referendum leader Gurpatwant Singh Pannu. The Khalistan referendum is the only solution to freeing Punjab from Indian occupation, and its leaders are being killed without accountability. We request the UN Special Rapporteur to conduct an independent investigation and truth commission to hold the responsible members of the Indian government accountable for killing Sikh representatives. The Sikh Assembly worked to introduce the Transnational Repression Reporting Act in the United States to enhance intelligence sharing between security agencies and improve federal monitoring of threats to all diaspora communities facing repression. We request the United Nations Human Rights Council to issue a similar resolution of interdepartment cooperation to protect all minority representatives being targeted transnationally by आ रहा है कुछ समझ में आया ही नहीं होगा। अंधभक्तों को तो बस एक ही चीज समझ में आती है, ब्रह्मांड गुरु का वहां डंका फूट गया, वहां डंका फूट गया, रुपया पाताल लोक में चला गया। ये जब तक टन की आवाज नहीं आएगी तब तक मानेंगे भी नहीं। रुपया गिर चुका है तब तक नहीं मानते। ये बड़े कमाल के हैं। बस एक ही चीज ओरिजिनल है इनके पास, वो है अंधभगत। ये वो गोबर मूत्र खाने पीने हैं, इनको कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे उठा सकता अपनी संसद में कोई? violent regimes. The second concern relates to the halting of transitional justice with unresolved human rights violations from Punjab's past. In the 1980s and 1990s, at the height of the Sikh genocide, human rights leader Jaswant Singh Kalra exposed more than 25,000 cases of enforced disappearances, extrajudicial killings, and falsified encounter reports. For documenting these abuses, he himself was abducted, tortured, and later murdered in police custody. The struggle for transitional justice continues to be restricted today, as the film Punjab 95, documenting Jaswant Singh Kalra's investigations, has been banned by the Indian Board of Film Certification, requiring over 125 cuts in an attempt to hide historical facts and further delay transitional justice of the Sikh genocide. Thank you very much. हाँ भाई, यहाँ बोल के दिखाओ इतना कोई खुल के, अगर बोल दे तो गारंटी है। एक रिपोर्ट और आई है, वो बोल रहे थे ना अमेरिका के अखबारों में नाम छपेंगे। छप गया, पहला इनाम मोरनी का छपया है, पहला इनाम मोरनी का। बड़ा कमाल हो गया। उसके बाद ये डिटेलमेंट आई है कोई विकास यादव की, इसकी डिटेलमेंट छप रही है पूरा बकायदा, वांटेड बाय द FBI विकास यादव। करेंगे तुम्हारा काम, करेंगे वो, ठीक है ना। और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो भी आपको बताते हैं। दोस्तों, अमेरिका के उस स्कैंडल में बीजेपी के कितने नेताओं की है फोटो? मोदी की इमरजेंसी मीटिंग, दिग्गज सांसद ने कहा बचा लो पार्टी। आखिर अमेरिका में बीजेपी के वो कौन कौन से नेता और मंत्री हैं और देश के कौन से उद्योगपति हैं जिनकी फोटो छपने जा रही है? और एक ऐसे स्कैंडल में, जिस स्कैंडल के सामने आने के बाद में जाहिर तौर पर जो स्थिति उत्पन्न होगी उस पर जनता थू थू करेगी। आखिर बीते दिनों डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्यों कहा था कि माय डियर फ्रेंड, मोदी के बारे में मैं कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता, नहीं करना चाहता जिससे उनके पॉलिटिकल करियर पर किसी तरह का प्रभाव पड़े। दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ पता है, उसने बोल दिया
डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला है, बोला मैं ऐसा नहीं करना चाहता जिससे कि पॉलिटिकल करियर ही खत्म हो जाए। और बार बार अगर ध्यान दिया तो पुन्नू क्या बोलता है, किल्ड मोदी पॉलिटिक्स, यही बोला था ना उसने। मोदी की पॉलिटिक्स को खत्म करने की बात कर रहा था। कैसे कर रहा था इसका मतलब तो उसको पता लग चुका था। पन्नू की भी बात हुई होगी फिर पक्का डोंटू साहब से हुई है। तो मेरे भाई नाम छपने, पेपर में फोटो आने तुम्हारे शुरू हो चुके हैं, पेपर में फोटो आने। और इतना शर्मनाक कांड में तुम्हारा नाम आ रहा है कि तुम है ना किसी को बता भी नहीं पाओगे, बता नहीं पाओगे किसी को भी ये हमारा नाम कैसे आया, हमारा नाम कैसे आया, नहीं बता पाओगे। अब यहाँ की बात करते हैं। आज से संसद सत्र शुरू है। क्या बंदी सिंह को गिरियाई की मांग उठेगी? अमृतपाल सिंह को जैसे ही बाहर आने का वो होता है, खड़े हो जाते हैं ये धार्मिक करो, बस खतरा खतरा खतरा। कौन सा खतरा? जसदार भाई जगतार सिंह वारा से कौन सा खतरा? उनकी माता जी इंतजार कर रही है, क्यों नहीं छोड़ा जा रहा उनको? लेकिन यहाँ पे कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलेगा। संसद के अंदर देखना चुप रहेंगे सभी। कोई अगर बंदी सिंह की आवाज उठा दे या अमृतपाल की आवाज उठा दे या पंजाब के हकों की बात कर दे, अभी तो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी में झुकाया है, अगला नंबर अभी चंडीगढ़ को आजाद करवाने का है, फिर पंजाब को, फिर बीबीएमबी को, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें से हरियाणा और पंजाब दोनों को आउट कर दिया गया है। यह तुम खेल खेल रहे हो ना, जैन जेट जगह हुआ है। अभी तो सिर्फ कच्ची फाड़ी है और कुछ भी फट सकता था अगर तुम सामने आते तो। तुम्हारे कच्ची फटने पर इतना दुख हो रहा है और अमेरिका वाला बोल रहे हैं हम तो अखबारों में छापेंगे बाकायदा और फिल्म रिलीज करेंगे। कौन सा वीडियो है वो जिसके कारण पूरे देश को शर्मसार होना पड़ेगा? तुम्हारा याद नहीं होगा, एक नेता था, वो प्रधानमंत्री बनना था अपने देश का, लेकिन उसका एक वीडियो वायरल होया था, एक वीडियो वायरल होया था, उसको अपना राजनीतिक जीवन खत्म कर हो गया था उसका, उधर के उधर ही। बड़ा अच्छा नेता बताते थे उसको, नाम तुम बता देना कौन था। पूरे देश में उसको प्रधानमंत्री पद का अकेला दावेदार था वो, नहीं तो नंबर ही नहीं आना था कहीं, इंदिरा गांधी का, इनका किसी का भी नंबर नहीं आना था। लेकिन उसका बेचारे का एक वीडियो वायरल होया था और उसकी लंका लग गई थी। इनके तो आए दिन एक वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन अब की बार बड़े वाली मुर्गियों के वीडियो वायरल होंगे भाई, जो कि बची हुई थी। और अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम नहीं चाहते माय डियर फ्रेंड मोरनी का करियर खराब हो जाए, वो करियर को खा जाएंगे। उधर से निखिल गुप्ता की भी 2 बार पेशी हो चुकी है, पता है, उसने भी नाम ले दिए, बहुत सारे नाम आ रहे हैं सामने। तुम्हारे को ऐसा कुछ पता ही नहीं होगा, तुम लगे हुए यहाँ पर भानुमंडी और इसके दलाल हैं, ये तो कुछ बताएंगे नहीं, ना ही ये दिखाएंगे। सुनने में आया 2 और इंडियन को पकड़ लिया, इंडियन को पकड़ लिया 2 और को, वीडियो अपने पास, आराम से देख लेना। और मोरनी भगत बताए, घोटाले करने वाले अमेरिका में, मोरनी भगत, वाह भगतो वाह, तुम्हारे कारण ना दूसरों पे भी आंच आती है, इस चीज का पता है। फिर जो है ना बेचारे अपने सही तरीके से लीगल तरीके से भी गए होंगे ना, उन तक भी आंच आ जाती है ऐसे लोगों के कारण। ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर रहो ऐसों से। इनका काम यही है, चोरी चकारी, चोरी तो इनका पहला परम धर्म है, परम धर्म है इनका चोरी, और वो ये करते हैं। ऐसे करते करते अमेरिका में जाकर भी चोरियां करने लगे। वो लिस्ट बना कर बैठेगा डोंटू साहब, बोला पहले इन भगतों की लिस्ट बनाओ, ये भगत कितने हैं। जब भगता की लिस्ट बनने लगी तो लाखों की संख्या में मिल रहे हो तुम तो। अब तुम आओगे हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ कर आओगे, तुम्हारे साथ 1-2 और बिना बात का फंसेगा, देख लेना। आप लोगों को बार बार समझाते आए थे, घनी ज्यादा भगती है ना नुकसानदायक हो जाएगी। और अब तो अमेरिका ने बिल्कुल चूड़ी टाइट कर रखी है, चूड़ी टाइट। चाइना तुम्हारा साथ छोड़ गया, रसिया तुम्हारा साथ छोड़ गया, तुम्हारे साथ है कौन ये बताओ? बांग्लादेश आंखें दिखा रहा है, नेपाल भी आंखें दिखा रहा है, और बताओ किस चीज का ब्रह्मांड करूँ भाई ये? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।